Hi guys, welcome back to CAT by Supergrads. So we are done and dusted with the first part of our CAT preparation, that is the exam and the results. Exam ho gaya, we have spent almost 20-25 days anxiously waiting for the result. Finally the result is out, we know our percentile, and now you have a very good idea what colleges you can expect calls from. So you must have already applied to a lot of colleges and there are certain colleges jinki deadline abhi bachi hui hai. So with the percentile known, you are in a very good position to figure out which colleges to apply for going forward, right? So depending on your percentile, let's say if your percentile is above 95, you know IIM se call aa sakta hai, MDI, FMS, SP Jain, all these colleges could be your target. If your percentile is between 90 to 95, you can target colleges from DU, IMT Ghaziabad ho gaya, IITs ho gaya. These are the colleges you can target between 90 to 95. Between 80 to 90 you have colleges like IMI, JIM, Great Lakes, Tapmi, 4, Nirma, बहुत सारे colleges हैं इस percentile range में तो. And if you talk about percentile below 85, you still have very good colleges like Wellinger हो गया, LBSIM हो गया, right? IFMR हो गया, NIBM, a lot many colleges are there. So we can do a detailed discussion in a separate video, what colleges should you target. वो एक separately हो जाएगा. But one thing which I want to stress right now is, don't wait till the colleges give you call. Start with the second phase of your preparation right away, right? So ऐसा नहीं है कि कॉल्स आएंगे आपके जनवरी मिड या जनवरी एंड में. कई कॉलेजेस के कॉल्स अभी नेक्स्ट 1 वीक में आना शुरू हो जाएंगे IIMs के, बट लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस स्टार्ट गिविंग आउट कॉल्स towards the second half of Jan or the later part of Jan. But don't wait till you get calls to start your interview preparation. You should get right away start preparing for the second phase, which is your personality evaluation round कह सकते हो आप, right? एक aptitude round हो चुका है, एक personality evaluation round अब next phase जो होता है वो होने वाला है आपका. तो इसको आप 3 parts में सोच सकते हो. One is documentation. What you have to do is you can categorize it into 3 parts. One is documentation, the next is research, and the third is execution. So let's discuss each of these in detail. So documentation की जब मैं बात करता हूँ तो it's about your preparing your CV, having SOPs and having a strong group of LORs, right? तो अगर मैं CV की बात करूँ, your resume is a sort of quick snapshot of what you have done in your life. All of us must have prepared our resumes at some point or the other. तो resume तो आपको पता है क्या है. Resume के अलावा you also would have to prepare SOPs for a lot of colleges. Statement of purpose हो जाता है, right? तो statement of purpose is a sort of detailed description of what your career goals are. Why do you want to do MBA? So हर कॉलेज का अपना अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है. Either they can ask specific questions to you or they can simply generally ask you to give an SOP. तो SOP में once you start figuring out कि क्या क्या हमें करना होता है, तो SOP में जनरली ऐसा होता है कि you put in your career goals, you put in your ambitions कि क्या करना चाहते हो आप, why do you want to do MBA, and one very important thing as far as SOPs is concerned, how do your career goals align with the curriculum of the college that you are writing SOP for. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. ही सबका SOP अपना अपना होता है, but why specifically this college, what this college has to offer you or what do you have to offer to this particular college you are applying to, वो एक बहुत important part हो जाता है SOP का. And in certain colleges, not all the colleges, in certain colleges LORs भी मांगे जाते हैं, letter of recommendations भी मांगे जाते हैं, wherein you will have to provide detailed contact details of certain people who can give strong recommendations for you. ठीक है, आपकी तारीफ कर सके थोड़ी बहुत, ऐसा मान लो. तो बहुत कम कॉलेजेस मांगते हैं ऐसा, बट देयर आर सर्टेन कॉलेजेस हु आस्क फॉर दिस. तो भाई ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सीवी में जो भी आप लिखो उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए. ठीक है, होना चाहिए. इट हेल्प्स, इट्स बेटर इफ यू हैव प्रूफ्स. प्रूफ नहीं है तो थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट के गड़बड़ हो जाएगा, बट अगर प्रूफ होता है, इफ यू हैव समथिंग टू शो टू देम दैट आई हैव डन दिस, इट्स ऑलवेज बेटर. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट विच इज द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. नेक्स्ट आता है रिसर्च पार्ट, जो मैं बात कर रहा था ना, विच कॉलेजेस यू कैन एक्सपेक्ट कॉल्स फ्रॉम, या फिर अगर किन्हीं कॉलेजेस की डेडलाइन बची है तो
विच ऑल कॉलेजेस शुड यू अप्लाई टू। तो इसमें भाई देखो एक पार्ट तो ये आता है कि इफ यू लेट्स से हैव यू आर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग टू सर्टेन कॉलेजेस, भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बहुत अच्छा सोर्स of this information would be the alumni of these colleges. Talk to alumni of certain college you are thinking about, talk to them भाई curriculum कैसा है, what are the placements, peer group कैसा है, industry connect कैसा है, right? What are the non academic activities that happen in the college, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। So alumni would be the best people to guide you in that regard, ठीक है ना। फिर उसके बाद you have mentorships, you can talk to your teachers or फ्रेंड्स हु हैव गॉन टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टीचर्स जो आप किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर enrolled for the admission program which I will be telling you later, so there you can talk to these mentors who have gone through this rigor themselves a lot many times and they would be in a very good position to guide you, ठीक है। एंड फाइनली एक चीज़ और ध्यान रखना, a lot of these colleges they do their own or they conduct their own webinars and fairs जहाँ पर they tell you about the obviously they try to sell you, they tell you the goods of the college, not the bads, but at least you get a very fair idea. So the college students themselves, they go to different coachings, या they do online webinars where they tell you कि भाई कॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, what sort of rounds are there, what sort of questions are asked. तो ये सब चीज़ें, ये हो गया आपका रिसर्च फेज wherein you figure out कि भाई कौन से कॉलेज की what are the goods and what are the बैड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट विच इज द रिसर्च फेज। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं विच इज द एग्जीक्यूशन पार्ट। अब इसमें आपने सब कॉलेज के बारे में पता कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन सब रेडी है, नाउ कम्स द फाइनली भाई आप वहां जाओगे, जो पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन होगा, तो वहां पे तीन चीजें हो सकती हैं, या तो रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, या जीडी होगा, या फिर पीआई होगा। ऑब्वियसली इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन ईच कॉलेज, बट मोटा मोटा ये तीन एक्टिविटीज होती हैं। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स बिफोर हैंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज गए जिस दिन इंटरव्यू है दैट इज द फर्स्ट इंटरव्यू दैट यू आर फेसिंग, यू मस्ट हैव थॉट अ लॉट अबाउट कि इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर करना है, वैसा आंसर करना है, बट बिलीव मी जितना भी सोच लो वंस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई तुम पहले से उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जब एक्चुअली आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो ना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा हेजिटेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। इफ़ यू वुड हैव फेस्ड इंटरव्यूज एटलीस्ट 4-5 इंटरव्यूज बिफोर हैंड, थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं ये बोल सकता हूँ या फिर ये नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। So practice mock interviews, prepare for GDs, prepare for VATs. At least you should have practiced or you should have given 5 to 6 PIs before you go for the actual interview. ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। फिर टेस्ट वगैरह, तो रिटन एबिलिटी टेस्ट जो है, एसेज वगैरह, ये आपको लिखना चाहिए। अब रिटन एबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, ये जो एसेज लिखने होते हैं, इनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया, एक स्ट्रक्चर होता है भाई। हाउ शुड यू स्टार्ट, व्हाट शुड बी द मिडिल पार्ट, व्हाट शुड बी द कंक्लूजन, इनमें हमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में सोच के हमें ऐसे लिखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सो डोंट थिंक कि भाई मुझे तो आता है एंड मैं डायरेक्टली वहाँ जाके कर पाऊँगा, इट डज नॉट ऑलवेज वर्क दैट वे, ठीक है। सो टू हेल्प यू विद दिस सेकेंड पार्ट विच इज़ द पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन राउंड ऑफ IIMs, we are launching an Admit Sure batch wherein you will be getting more than 35 content sessions. Content sessions में क्या क्या रहेगा आपका? You will have sessions, academic sessions रहेंगे, you will have general awareness sessions, you will have a lot many sessions जहाँ पर आपको SOP writing के बारे में बताया जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है ये बताया जाएगा, फिर GK GS सेशंस तो होंगे, ऐसे राइटिंग सेशंस होंगे। सो you'll have more than 35 plus sessions wherein you will be given guidance how to go about your personality evaluation round, right? Apart from this, there will be mock interviews also. So there will be at least 2 mock interviews for each call that you get, right? General interviews तो आपके होंगे ही। Apart from general interviews, जो HR interviews वगैरह normal होते हैं, you will also be getting 2 interviews for each call. तो कई बार क्या होता है, एक general interview होता है, भाई HR normal questions हो गए। कई कॉलेजेस जो होते हैं
उनके इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। शिलोंग के IIM शिलोंग के इंटरव्यू में थोड़ा सा स्टैट्स वगैरह पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा होता है। कहीं किसी और कॉलेज में वो आपका अकेडमिक प्रोफाइल पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरीके से थोड़े वेरिएशंस होते हैं हर कॉलेज के इंटरव्यू के फ्लेवर में। सो फॉर ईच call that you receive, we will also be giving you at least two separate mock PIs. Obviously, that is a minimum number. उससे ज़्यादा भी हो सकता है if required, right? So we have launched this AdmitSure batch, and you can use this code Bell the Cat, and you can avail 50% discount. This discount is available only for the next 2 to 3 days. So if you want to enroll, go ahead and enroll right away. The link for this particular batch is available in the description box. ठीक है ना? Now ये तो हो गया अपना पर्सनालिटी इवैल्यूएशन राउंड, वो ठीक है, बट एक बार और समझो, ये तो अपने को करना ही करना है। इसके अलावा वी स्टिल हैव ज़ैट, दैट इज स्टिल देयर, ठीक है। स्नैप और सीमैट, चलो स्नैप हो चुका है, एनमैट हो चुका है, अभी भी हमारे पास दो अच्छे एग्जाम्स, मतलब ज़ैट तो है ही और सीमैट भी है। ज़ैट इज स्टिल लेफ्ट, यू हैव ऑलमोस्ट 10 days टू प्रिपेयर फॉर ज़ैट। मेक श्योर कि भाई आप ज़ैट को भी अच्छे से फोकस करो। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, कैट गया उसके बाद दे फिजल आउट, दे लूज द एंथुजियाज्म, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। बट प्लीज डू नॉट डू दैट। ज़ैट के थ्रू यू हैव अ लॉट मेनी गुड कॉलेजेस, तो प्लीज़ मेक श्योर भाई आप ज़ैट के लिए भी अच्छे से तैयारी करो। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, बाहर जाके MBA करना चाहते हो, तो GMAT तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन है ही। GMAT में देखो क्वांट वाला पार्ट जो है वो तो तुम्हारा ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कैट की प्रिपरेशन करते करते कि उसकी टेंशन नहीं है। थोड़ा सा वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट जो है ना, वहाँ पे ग्रामर और वोकैब वगैरह GMAT में ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको और एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मेक श्योर कि भाई ज़ैट पे यू डोंट फिजल आउट ऑन ज़ैट, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना ज़ैट के लिए भी। फिर एक्सपैंडिंग ऑफ कॉलेज पोर्टफोलियो, अब जनरली बहुत सारे कॉलेज की डेडलाइन तो ख़त्म हो ही गई हैं, एंड आपका परसेंटाइल भी अब आ गया है। तो आपका लेट्स से 95 परसेंटाइल आया, तो तुम सोचोगे सर मैं फिर ये 90 के बिलो वाले कॉलेजेस में तो अप्लाई नहीं करूँगा, फिर 95 के बिलो वाले कॉलेजेस में जिनका कट ऑफ जाता है मैं अप्लाई भी नहीं करूँगा। आई वुड एडवाइज कि वॉट एवर योर परसेंटाइल इज, इफ लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर 20 colleges, let's suppose if you are applying for 20 colleges, out of these 20 colleges 10 colleges should have cut off in and around जो तुम्हारा परसेंटाइल है। 5 कॉलेजेस थोड़े से हायर परसेंटाइल कट ऑफ के अप्लाई करना, और 5 कॉलेजेस थोड़े से लोअर कट ऑफ के भी अप्लाई करना, ठीक है। यू नेवर नो PI में क्या होता है, किस तरीके के इंटरव्यूज वगैरह जाते हैं। तो आपका जो कॉलेज पोर्टफोलियो है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए। मैक्सिमम कॉलेजेस वी हैव अप्लाइड विद इन आर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल रेंज, थोड़े से ऊपर परसेंटाइल रेंज के, थोड़े से नीचे के परसेंटाइल रेंज के, कि मान लो हमारे इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाते हैं, इफ़ वी डू गेट अ कॉल फ्रॉम, इट माइट बी पॉसिबल कि कोई कॉलेज हमें कम परसेंटाइल पे भी कॉल दे दे, यू नेवर नो, दैट इज़ पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि भाई हमारे परसेंटाइल रेंज वाले कॉलेजेस के जो इंटरव्यूज हमने दिए दे डोंट गो एज प्लान्ड, तो एक बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 कॉलेजेस हमारे लोअर परसेंटाइल रेंज के भी हमें अप्लाई करने चाहिए। जाना है और यार नहीं जाना है, दिस डिसीजन कैन बी टेकन लेटर ऑन वंस यू हैव कॉलेज इन योर हैंड, फाइनल कॉल एडमिशन इन योर हैंड, तब कॉल लेना कि भाई जाना है या नहीं जाना है। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ कॉलेज, ऊपर से लेके ब्लू स्काई सिनेरियो से लेके एकदम बैकअप ऑप्शन तक सब हमारा रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। सो देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जिनकी डेडलाइंस अभी भी शायद बाकी हैं, हालांकि IIMs का ऑलरेडी कैट के थ्रू हो चुका है, बट लॉट ऑफ IIMs रोहतक, रायपुर, मुंबई, वाइजैक, अमृतसर ये सेपरेट फॉर्म्स भी भरवाते हैं। तो अगर तुम्हारा परसेंटाइल इनके कट ऑफ के आसपास है, यू विल हैव टू सेपरेटली फिल द फॉर्म्स ऑफ दीज IIMs। देन यू हैव IITs जिनका अभी भी पेंडिंग है। IIMT शुड हैव बीन IIMT जनरली एक सेकेंड टाइम फिर से ओपन करता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस ओपन करता है, एडमिशन फॉर्म्स। तो जस्ट कीप अ check on this, IIMT might reopen if your percentile is in the range of IIMT गाजियाबाद। JBIMS हो गया, XIMB हो गया, DUK ये कॉलेज है, DFBE, ये पहले 2 अलग अलग कॉलेजेस हुआ करते थे, अब मर्ज हो गए हैं, ठीक है।
सिम्बाइसिस के कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी डेडलाइन अभी बची है, तो ये वो कॉलेजेस हो गए जिनके कट ऑफ जनरली 90 परसेंटाइल से ऊपर जाता है और इनकी डेडलाइन अभी बची हुई है, एंड दीज आर वेरी वेरी गुड कॉलेजेस, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा परसेंटाइल 90 के नीचे आ रहा है तो यू कैन स्टिल टारगेट दीज कॉलेजेस जिनकी डेडलाइन अभी बची हुई है। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज अ लिस्ट ऑफ गुड कॉलेजेस जिनकी डेडलाइन अभी बची हुई है। यू कैन ऑब्वियसली फाइंड अ लॉट मेनी कॉलेजेस जिनकी डेडलाइन अभी और भी बची हुई है। तो मेक श्योर भाई आप जो पोर्टफोलियो है अपना कॉलेज सिलेक्शन का, एप्लीकेशन का, वो बहुत अच्छे से और बहुत सोच समझ के आप करो, ठीक है ना। चलो, तो विद दिस लेट मी एंड दिस सेशन एंड आई टेल यू योर MBA सक्सेस ओनली इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया एंड यू आर डन एंड डस्टेड विद। एक्चुअल पार्ट जो है ना तुम्हारा MBA जर्नी का, वो कॉलेज जब शुरू करोगे तब से स्टार्ट नहीं होगा, अभी से स्टार्ट होगा। ये जो पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन है ना, क्योंकि this personality evaluation will keep going on throughout 2 years of your MBA education, right? वहाँ पे भी आपको जब कंपनीज आएंगी CV बनानी पड़ेगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें अभी इस सेकेंड फेज में करना है। तो मेक श्योर यू टेक दिस वेरी 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 सीरियसली, यू प्रिपेयर योर अकेडमिक्स वेरी स्ट्रांगली, यू प्रिपेयर विद योर GK GS जो भी करंट अफेयर्स है बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। चलो, तो with this I'll end the session now. Thank you guys and make sure you enroll for the AdmitSure batch and you will be guided through जो जितनी मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उस चीज़ के लिए अच्छे से आपको बहुत properly guide किया जाएगा in the AdmitSure batch. Thank you guys. All the best. Bye.